हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके सामने लेके आए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. So in this one, first we will discuss about coordination number 4. In coordination number 4, the geometry that will be, you know all very well, tetrahedral complexes. Tetrahedral complexes or tetrahedral structure. So how tetrahedral will be formed? C, H, H, H and H. Okay, this is our tetrahedral geometry. Ligand A, ligand B, ligand C, dash or ligand D. You can see here what is the value of bond angle here. The value of bond angle is 109 degree 28 minutes. What is the value here? 109 degree 28 minutes. अगर हम इसकी पोजीशन का एक्सचेंज इसकी पोजीशन से कर दें तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. तो यहाँ से देखो, मैंने पोजीशन चेंज किया. ये आपका C, ये है आपका A, यहाँ है आपका D, यहाँ आया आपका B और यहाँ आया आपका C डैश. अब देखो भाई, यहाँ भी A और D में बॉन्ड एंगल क्या था आपका? 109 डिग्री 28 मिनट्स. क्या था? 109 डिग्री 28 मिनट्स. तो यहाँ भी अगर आप देखो तो एंगल कितना आ रहा है? 109 डिग्री 28 मिनट्स. क्या कोई एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पर? नो, यहाँ कोई भी एंगल चेंज नहीं हो रहा. और जब एंगल चेंज नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, तो इस समय आपकी क्या नहीं होती? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती. दोबारा सुन लो, अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी. किसके केस में? आपके स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री के केस में. कौन सी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के केस में. सो इट do not exhibit geometrical isomerism because no change in angle. Okay, now we are moving on. Coordination number 4, along with square planar geometry. Along with square planar geometry. Coordination number will be again what? 4. See, in this one I am taking example A, that is MA4. So geometry will be square planar M. This is A. This is A. This is A. And this is A. A square planar geometry. Now see, here also bond angle 90 degree. Here bond angle also 90 degree. Okay, and here also bond angle 90 degree. On each position angle is 90 degree. Sir, kindly change the position of group atom. Okay dear, see this A. I am shifting here this A. So structure will remain same. If you want to draw, if you want to do time pass, then you can do time pass dear. Here M, here A, here A, here A, here A. On each position we are having group A. So the angle is what? 90 degree. So no change in angle. So it will be what? Your
not geometrical isomerism. No GI. No GI. Sir, kindly do one thing. Change the group. Okay, I am changing the group. Taking Ma3B. Ma3B. M. A. B or A. What is the angle between A and B? That is 90 degree. Again see here. M A A. Change the position of B. Change the position of B. So B here and A here. B here or A here. Now you can see again what is the value of bond angle here? 90 degree. Bond angle here what? 90 degree. No change in angle. So here will be no GI. No change in angle. So here will be no GI. Suppose we are taking Ma2B2 type of ligand. Ma2B2 type of ligand. So then what will happen here? 1M here, 1M here. So now put the valencies. B here, B here, A here, A here. Now change the position. B here, B here, A here and A here. Now you can see हमने यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल कितना था 90 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें 180 डिग्री में. किस में कन्वर्ट कर दिया हमने इसे 180 डिग्री में. अब एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया. तो भाई याद रखना एंगल के चेंज होते ही यहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म आ जाएगी GI. और you can see other angle also. See this one also become what 180 degree. Here this one also was 90 degree. This was 90 degree. So now become which one is this one 180 degree. It is clear, yes or no? So writing here, if angle between same atom of ligands equal to 90 degree. अगर सेम एंगल सेम एटम में एंगल 90 डिग्री हुआ तो क्या बनेगा सिस. अदरवाइज 180 पे क्या बन जाएगा आपका, अदरवाइज एट 180 डिग्री इट विल बिकम व्हाट ट्रांस. क्या बन जाएगा आपका ट्रांस. यहाँ तक क्लियर है सभी को. भाई ए और बी जो है ना आपके वो मोनोडेंडेट लाइगैंड है, कृपया माइंड में रखना. ए और बी जो ले रहे हैं वो हमारे कौन से लाइगैंड हैं, मोनोडेंडेट लाइगैंड है. कौन से लाइगैंड हैं, मोनोडेंडेट लाइगैंड. A4 नहीं देता, A3B नहीं देता, A2B देता है. अब आ जाते हैं किस पे A2BC के पास. तो A2BC कितना देगा ये देखते हैं अपन आगे चल के. नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई. नेक्स्ट है हमारा AB and this is C. Part D. Ma2. This was what? Ma2B2. Now convert B2 into which one? BC. Just check out the structure first. After then I will tell you the trick. MAA
और ये क्या है बी, और ये क्या है सी। सेम में 90 डिग्री का एंगल, सेम ग्रुप 90 डिग्री, क्या बना सिस। अब इनको अपोजिट कर दो, ये बना ए, ये बना ए, ये बना बी, ये बना सी। अब ये देख लो सेम एटम में एंगल कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री अगर सेम एंगल आ रहा है तो ये होगी पोजीशन कौन सी, ट्रांस। सॉरी 180 है, 180 180 180, माई मिस्टेक, 180, पार्डन में 180 बन रहा है तो क्या होगा, ट्रांस ही होगा। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब एक और बना लेते हैं भाई, एम ए बी सी डी, ई पॉइंट ए टू बी सी हो गया, एम ए बी सी डी, एक एम यहाँ रखा, एक एम यहाँ रखा, तो देखो भाई पोजीशन लगाते जाओ, एक को फिक्स कर दो, एक को, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या है डी। अब एक को तो रखो फिक्स, बाकी के को घुमा दो, यहाँ ला दो सी, यहाँ ला दो आपका क्या बी, यहाँ ला दो क्या आपका डी, ला दिए हम यहाँ पर। अब फिर पोजीशन चेंज करो, ए को रखो फिक्स, अब बी को इधर भेज दो, सी को इधर भेज दो और डी को इधर भेज दो। देखो भाई हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले बी शिफ्ट किया, उसके बाद सी शिफ्ट किया, उसके बाद हमने सी की जगह क्या लगाया, डी। टोटल कितने जी आई मिल रहे हैं इसके, 3 जी आई मिल रहे हैं। टोटल कितने मिल रहे हैं, 3 जी आई। अब यार इसमें एक स्पेशल केस बनता है बाइडेंडेट लाइगैंड का। अभी तो हम क्या देख रहे थे, मोनोडेंडेट, अब हम देखने वाले कौन से, बाइडेंडेट लाइगैंड। तो भाई बाइडेंडेट को ढंग से समझना, ये है एम और एग्जाम्पल है एम ए बी होल 2। ये हुआ ए, ये हुआ बी, बाइडेंडेट लाइगैंड। ये हुआ ए, ये हुआ बी, बाइडेंडेट लाइगैंड। बना दिया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को। अब इसकी एक फॉर्म और बन सकती है, सर क्या बन सकती है, रिवर्स कर दो भाई। देखो सेम कितने पे आ रहे हैं, 90 पर, तो रिवर्स करो इसको। एम कुछ नहीं करना भाई, उल्टा कर देना सीधा। यहाँ पर ए और बी लगा हुआ है ना, यहाँ पर सी और डी लगा दो, सॉरी बी और ए लगा दो। एंगल कितना डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। सिर्फ इतना करना है, इसके अलावा कुछ दिमाग नहीं लगाना। अब मैं एक इंडेक्स बता रहा हूँ, उस इंडेक्स को याद रखना। सबसे पहले क्या आया था हमारे पास, हमारे पास लाइगैंड है कौन कौन से, ए बी सी डी, 4 है। सबसे पहले आया MA4, उसके बाद आया MA3B, ओके। उसके बाद आया MA2B2, उसके बाद आया MA2 और BC, ओके सर। और उसके बाद आया MABCD, क्या आया, MABCD। अगर बात करें यहाँ पर GI, हेयर नो GI, हेयर नो GI, हेयर 2 GI, हेयर हाउ मैनी GI, A to B C, 2 GI एंड हेयर 3 GI, हेयर 3 GI। और लास्ट केस था स्पेशल MAB2 वाला केस, यहाँ पर कितने आए अपने 2। ए और बी बेटा मोनोडेंडेट लिगेंड है, ABCD जो दिए हैं वो हैं आपके मोनोडेंडेट लाइगैंड। अब यहाँ तक देख लो, कोई इश्यू हो किसी को स्टार्टिंग से अब तक। आगे मूव करने वाले हैं हम भाई, आगे का पोर्शन हमारा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
अब आते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर। इन, ये कौन सा केस था, फर्स्ट था ना, यस। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर। फर्स्ट, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर आ रहे हैं। 6 पर ज्योमेट्री आपको पता है क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। सबसे पहले मैंने इसमें लिया MA6 टाइप। MA6 टाइप 2, 3, 4, 5, 6। ए और ए। यार अब सिंपल सी बात है, सभी में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना भी चेंज कर लो एंगल चेंज नहीं होगा, तो यहाँ तो आएगा नो GI डायरेक्ट। सर आपने लिया MA5 लिया, अब आप MAB ले लो। MA6 लिया आपने, अब आप जरा MA5B ले लो। तो ले लो भाई, तुम्हारी मर्जी पड़े तो MA5B, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मिलेगा आपको। देखो M A A A A B A। आप बी को किसी भी एंगल पे लगा लो, आना सिर्फ क्या है आपका, 90 डिग्री है। सब जगह क्या आना है, 90 डिग्री। नो GI, नो GI। सर जरा MA4B लगाना। चलो MA4B लगा लेते हैं। ये M, ये A, ये A, ये A, ये A, ये B, ये B। एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितना है, 90, सॉरी 180, बाई माई मिस्टेक, 180 डिग्री। 180 डिग्री पे बन गया ट्रांस। सर जरा 90 पे लगा के दिखाओ तो देख लो, ये है B, ये है B, दोनों कितने पे आ गए, 90 पर। ये है A, ये है A, ये है A, ये है A। अब दोनों किस पे आए, 90 पर, तो क्या बन गया, सिस। क्या बना, सिस। सो ये चेक कर लो, अगर सेम ग्रुप 90 डिग्री पर है, सेम किस पर है, 90 पर, तो बनाओ सिस। अपोजिट है तो बनाओ क्या, ट्रांस। यहाँ तक क्लियर। इसमें एक बहुत स्पेशल केस और है, ये A, ये आपका B, ये आपका C। अब देखो इसमें एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस है, वो समझना। MA3 B3, MA3 और B3, समझना है इसको। ये M है, ये A है, ये A है और ये A है। यहाँ पर ये B है, ये B है और ये भी क्या है, B। अब इधर देखो, समझना भाई ढंग से। यहाँ पर एक फेस बन रही है, ये इसको कहते हैं फेस। ये क्या बन रही है, एक फेस।
अब इसके अपोजिट चले अपन, तो देखना 1 मिनट, पहले यहां तक नोट करो बेटा फास्ट। जल्दी नोट करो। अब देखो यहां बात करें, मैंने चेंज कर दिया एम चार 5। देखो ए यहाँ रखा मैंने, ए यहाँ रखा, बी यहाँ रखा मैंने, बी यहाँ रखा। क्लियर। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, आराम से सुनना, इस बी को रिप्लेस किया ए से, यहाँ रखा मैंने क्या, आपका बी, और यहाँ रखा बी। पहले फेस बन रही थी, पहले क्या बन रही थी, फेस। अब आप आराम से देख सकते हो भाई फेस नहीं बन रही। अब ये बन रहा है, इसे कहते हैं फेशियल। अबे चेहरे पे कराने वाला नहीं, फेशियल। और इसको कहते हैं मेरिटोनियल। तो एक बना फेस, एक बना आपका मर, ई नहीं है फेस है, एक बना फेस, एक बना आपका मर। तो अगर तीनों एटम एक ही साइड पर हैं तो बनेगा फेस, अगर दो एक साइड पर और एक एक साइड पर है तो बनेगा आपका क्या, मर। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बच्चा बोला सर सर आपने ये तो लगा दिया क्या यहाँ पर, Ma3B3 लिखा, सर ये था क्या आखिर। बेटा ये यही तो था, बाइडेंडेड लाइगेंड। क्या था ये, बाइडेंडेड लाइगेंड MAB3। और आप इसको ये नहीं लिखना चाहो तो आप इसको सिंपल लिखो A3B3। अब आते हैं इसके एक और स्पेशल पॉइंट पे आते हैं। ये तो हुआ फर्स्ट, अब आते हैं सेकंड पर। MAA3 मैंने ये ले लिया। सोचो MAA3 एग्जिस्ट करेगा क्या यार, नहीं करेगा। सिंपल है, सारे एटम सेम हैं, नो एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ना ही करेंगे। तो देख लो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो, दिक्कत हो तो बताओ, उसका आप समाधान हम निपटाते हैं। तो देखो भैया दोबारा देख लो एक बार, टेट्राहेड्रल वाला तो ज़िंदगी में नहीं देगा, स्क्वायर प्लेनर में A4 नहीं देगा, A3B नहीं देगा, A2B से स्टार्ट होगा, MA2B2 से स्टार्ट होगा, MA2BC देगा, MABCD देगा, यही देंगे। अब आते भैया हेक्सागोनल के ऊपर। हेक्सागोनल में किसने नहीं दिया, MA6 ने नहीं दिया, MA5B ने नहीं दिया, अब दिया किसने, MA4B2 ने। तो स्टार्ट करेंगे MA4B2 से ही। अब बताने जा रहे हैं आपको सुपर ट्रिक, दिमाग मत लगाना, आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। सुपर ट्रिक बताने जा रहे हैं भैया, समझना इसको, समझना इसको। यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, कॉम्प्लेक्स। ये लिखा मैंने कॉम्प्लेक्स, ये लिखा मैंने नंबर ऑफ GI, ये लिखा मैंने नंबर ऑफ GI। यहाँ पर एक खींच दी स्ट्रेट लाइन काले रंग की, नज़र नहीं लग जाए ट्रिक को कहीं बेटा। तो देखो भाई, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तो मैंने एक चीज़ बताई,
MA6 तो देगा नहीं, MA5 भी देगा नहीं, तो सर अब देगा कौन? स्टार्ट करेंगे MA4 किससे? B2 से। क्लियर? उसके बाद जाएंगे क्या? B2 को ओपन कर लो, फिर जाएंगे MA4 BC पर, फिर उसके बाद जाएंगे MA3 B3 पर, उसके बाद B3 को फिर ओपन करो, फिर जाएंगे किस पर? B2C पर, फिर B2C को फिर ओपन करो, फिर किस पे जाएंगे? BCD पर। अब उसके बाद A3 B3 आ गया था, अब जाओ किस पर? MA2 पर और B2 पर और C2 पर, 6 हो गए। फिर जाओ MA2 B2 C2 को ओपन करो, CD, फिर करो किसको ओपन भाई? यहाँ पर B2 को ओपन कर दो, MA2 B2 को ओपन करोगे तो क्या आएगा? सोचो भाई, BCDE कर लिया ओपन, और अब A2 को ओपन कर दोगे तो MABCDEF। कितने लाइगेंड हो गए? 6, सभी मोनोडेंडेट हैं। अब ट्रिक याद रखना भाई, स्टार्टिंग के 3 तो 2 2 2, 3 तो क्या देंगे? 2 2 2, उसके बाद 3 4 5, उसके बाद 3 4 5, उसके बाद 6, 6 में 3 करो ऐड 9, फिर 3 करो 15। स्टार्टिंग के जो 3 हैं, स्टार्टिंग के जो 3 हैं वो तो देंगे आपके कितने? 2, उसके बाद 3 4 5, फिर 6 का दुगना 9, 9 का दुगना 15। अब कुछ स्पेशल हैं जिन्हें मैं अलग कलर के नोट से लिख रहा हूं। MAA B2, MAA 2 BC, और फिर है MAB और होल 3, MAB होल 3। डायरेक्ट याद रखो, 2 2 और 2, 2 2 और 2, ये 2 है भाई। अबे ए दिख जाए ना, ए दिख जाए बाइड एंडेड, तो दिमाग मत लगाना, आंसर सीधा ठोक देना, क्या जाएगा? 2 ही जाएगा। MA3 B3 बता दिया ना मैंने तुम्हें? हाँ बता दिया, ये भी बता दिया आपको मैंने। अब चलते हैं आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे भाई। यहाँ तक ज्योमेट्रिकल का पार्ट ओवर होता है। ये कंप्लीट ज्योमेट्रिकल बता दिया आपको मैंने। पानी पी लें यार, ब्रेक दो 5 मिनट का, हमें भी, हम भी इंसान हैं। पानी पी लेते हैं। चलो भाई, ऑप्टिकल को अपलोड करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन लेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।